¿Sabes cuál es la palabra que más le gusta a Thor? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि थॉर का पसंदीदा शब्द क्या है? ठीक है, बट डू यू नो व्हाट्स थॉर्स फेवरेट वर्ड फ्रॉम माय वोकैबुलरी इज? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. So today we are going to learn English with an amazing movie that is My Fault. एक ऐसी टीनेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो इमोशंस, एटीट्यूड, अट्रैक्शन सब कुछ एक ही फ्रेम में पैक करके देती है. तो इस मूवी का जो प्लॉट ट्विस्ट है लाइक वो रिवॉल्व करता है निक एंड नोआ के अराउंड, जो कि स्टेप सिबलिंग्स हैं. एंड जैसे ही वो एक घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं तब शुरू होता है एक ऐसी जर्नी जिसमें होता है रिसेंटमेंट एंड रोमांस, थ्रिल, थोड़ा सा रिबेलियन भी. सो आज हम इसी मूवी की एक छोटी सी क्लिप लेंगे और उससे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि इसमें जो डायलॉग्स हैं दे आर वेरी सेवेज, दे आर वेरी स्टाइलिश, so that they'll be really helping you in your spoken English journey. आप देखोगे कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो एक्सप्रेशंस के साथ. एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है एंड इफ वी नो इंग्लिश देन इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस, देन यू आर पैथेटिकली मिस्टेकन. ये वीडियोस बिगिनर्स के साथ साथ अगर आपको इंग्लिश आती भी है तो भी आपको बहुत हेल्प करेगी. नाउ हाउ सी व्हेन you'll be seeing the clip, आप सीखोगे कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो फ्लुएंटली, स्मूथली एंड विथ एक्सप्रेशंस. ओके, क्योंकि व्हेन द पीपल से द डायलॉग्स, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज देयर नेटिव लैंग्वेज, दे से इट विद एक्सप्रेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to see and to apply on yourself too. All right, so if you want to learn English in the most fun and amazing way, then you are at the right place. We'll be learning English practically, and you'll see that how can you speak English naturally without the boring grammar rules and the practical theory. So without wasting time, now let's just go straight into the scene of one of the most you can say, you can famous movie it was really viral. So yeah, let's start with the My Fault. All right, so now let's start with the first dialogue which we are having in this particular clip. Let's see what is that. All right, before starting the clip, one more thing I would like to clear. So see, I think there is some problem with the voice, तो maybe जो dialogues हैं वो आपको directly screen से ना सुनाई दें, तो like for that जो भी dialogues लिखे होंगे they'll be written on the screen also, plus I will be dictating you all the dialogues. तो आप या तो screen पे लिखे हुए भी देख सकते हो, else मैं तो उनको loudly बोलूँगी, आप तब उनको समझ सकते हो. So अगर आपको लग रहा है कि वॉइस बहुत कम आ रही है, फिर आपको नहीं सुनाई दे रहा है, so that thing is also like I'll be dictating all the dialogues for you. One more thing, this particular clip is not in English, it's in Spanish language. But yeah, the subtitles which I have written, they are in English. So we will be proceeding according to the subtitles. All right. Okay, let's start. Joder. Tú debes de ser la hija de la nueva. Okay, then he says, you must be my dad's new wife's daughter. कि तुम शायद मेरे पापा की नई बीवी की बेटी हो. You must be my dad's new wife's daughter. तुम शायद मेरे पापा की नई बीवी की बेटी हो. ठीक है. You must be my dad's new wife's daughter. तुम शायद मेरे पापा की नई बीवी की बेटी हो. Got it? You must be my dad's new wife's daughter, which means कि तुम शायद मेरे पापा की नई बीवी की बेटी हो. Let's say it again. You must be my dad's new wife's daughter. You must be my dad's new wife's daughter. तुम शायद मेरे पापा की नई बीवी की बेटी हो. Got it? आगे देखते हैं. Mujer de mi padre. ¿Te apetece un ragú de Angus? ¿Un ramen?
Instruye le man. Okay, then he is asking because उसने फ्रिज खोला हुआ था तो he is asking कि वो क्या खाना पसंद करेंगे, ठीक है. So he is giving the options. How about an Angus ragu, some ramen and apple strudel. तो ये सारे खाने के options वो दे रहे हैं कि इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है, रामेन के बारे में क्या ख्याल है, apple strudel के बारे में क्या ख्याल है. So he is just giving the options like these. Okay. So he is asking, how about an Angan ragu, some ramen and apple strudel. So ये सारी कुछ खाने की चीज़ें हैं जो कि वो पूछ रहा है कि तुम्हारा इनको खाने के बारे में क्या ख्याल है. Zana. No sé lo que coméis en Paletolandia, aunque si lo vas a vomitar. Then he says, don't know what you eat in Yorker land, but if you're gonna throw it up. So फिर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम उस गांव जैसी जगह में क्या खाते हो, बट ये सारी चीज़ें खा के तुम्हें उल्टी ना हो जाए, ठीक है. ही इज सेइंग मुझे नहीं पता कि तुम उन गांव की चीज़ों गांव जैसी जगह पे क्या खाते हो, लेकिन ये चीज़ें खा के तुम्हें उल्टी ना हो जाए. गॉट इट. मुझे नहीं पता कि तुम उस गांव जैसी जगह में क्या खाती हो. पर ये सब खाकर तुम्हें उल्टी ना हो जाए. ठीक है. सो व्हाट इज द सेंटेंस. I don't know what you eat in Yorker land, but if you're gonna throw it up. Don't know what you eat in Yorker land, but if you're gonna throw it up. So what does it mean कि मुझे नहीं पता कि तुम उस गांव जैसी जगह में क्या खाते हो, लेकिन अगर तुम्हें ये सब खा के उल्टी हो गई तो ठीक है. सो ओके. अब आई थिंक कि आपको हिंदी में जो मीनिंग है वो तो समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स प्रैक्टिस हमारी इंग्लिश वाले सेंटेंस को बोलने की. डोंट नो व्हाट यू eat in Yorker land, but what if you're gonna throw it up? Don't know what you eat in Yorker land, but if you're gonna throw it up. ठीक है, आगे देखते हैं. Nicolás, ¿verdad? Then she says Nicholas, right? वो बोलती है कि Nicholas यही नाम है ना तुम्हारा, Nicholas यही नाम है ना तुम्हारा. That's right, and you are? Then he replies कि हाँ यही है और तुम कौन हो. हाँ यही है और तुम कौन हो. ठीक है. तो she asks कि Nicholas, right? कि Nicholas नाम है ना तुम्हारा. And then he says कि हाँ यही है और तुम कौन हो. ठीक है. तो यहाँ पे वो बस अपना नाम शेयर कर रहे हैं कि मेरा नाम ये है, तुम कौन हो, वही सब. ठीक है, आगे देखते हैं. Mismo. ¿Y tú eres? ¿En serio? ¿Sigues ahí? ¿Noah? No. देन जो उसकी फ्रेंड है कॉल पे वो बुलाती है कि तुम अभी कॉल पे हो क्या, नोआ. तो वैसे ही वो पूछता है कि नोआ. ठीक है, नोआ. ऑलराइट, आगे देखते हैं. Eso es un nombre de chico, ¿no? देन ही सेज isn't that a boy's name? Isn't that a boy's name? तो वो कहता है कि क्या ये लड़कों का नाम नहीं है, क्या ये लड़कों का नाम नहीं है. Isn't that a boy's name? क्या ये लड़कों का नाम नहीं है. Isn't that a boy's name, which means कि क्या ये लड़कों का नाम नहीं है. ठीक है. क्या ये लड़कों का नाम नहीं है. ठीक है. Isn't that a boy's name, which means कि क्या ये लड़कों का नाम नहीं है, क्या ये लड़कों का नाम नहीं है. ठीक है. Isn't that a boy's name? क्या ये लड़कों का नाम नहीं है. ठीक है, आगे देखते हैं.
De chico, ¿no? ¿Qué pasa? En tu limitado vocabulario no existe la palabra unisex. Then she says your limited vocabulary doesn't include the word unisex, कि तुम्हारी वो जो लिमिटेड vocabulary है उसमें यूनिसेक्स जैसा कोई वर्ड नहीं है क्या, कि तुम्हारी लिमिटेड vocabulary में तुम्हारी लिमिटेड vocabulary ओके में यूनिसेक्स जैसा वर्ड कोई नहीं है क्या, ठीक है। तो शी इज सेइंग कि तुम्हारी लिमिटेड vocabulary में यूनिसेक्स जैसा कोई वर्ड नहीं है। आगे देखते हैं। Sex. ¿Sabes cuál es la palabra que más le gusta a Thor? Then he says, do you know what Thor's favorite word from my vocabulary is? कि लेकिन तुम्हें पता है कि थॉर का फेवरेट वर्ड मेरी vocabulary में से क्या है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि थॉर का फेवरेट वर्ड क्या है मेरी vocabulary में से? एंड vocabulary को हिंदी में हम शब्दवली कहते हैं, शब्दवली, ठीक है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि थॉर का पसंदीदा शब्द क्या है? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि थॉर का पसंदीदा शब्द क्या है, ठीक है। बट डू यू नो व्हाट्स थॉर्स फेवरेट वर्ड फ्रॉम माय वोकैबुलरी इज, ठीक है। आगे देखते हैं। De mi vocabulario. Empieza por A, sigue por Ta y termina en K. No me hace ni puta Then- gracia. देन ही सेज कि वो ए से शुरू होता है, देन उसमें TTA आता है और फिर वो C पर ख़त्म हो जाता है, विच मीन्स कि वो अटैक वर्ड बताना चाह रहा है। कि लेकिन तुम्हें पता है कि थॉर का फेवरेट वर्ड क्या है मेरी वोकैबुलरी में से? अटैक, जो कि ए से शुरू होता है, देन बीच में TTA आता है एंड देन फिर वो CK से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। शी इज सेइंग इट्स नॉट फनी, ही डजंट लाइक यू, ठीक है। तो वो बोलता है कि ये मजाकिया नहीं है, उसे तुम पसंद नहीं हो। ये मजाकिया नहीं है, उसे तुम नहीं पसंद हो, ठीक है। ये मजाकिया नहीं है, उसे तुम पसंद नहीं हो। तो ही सेज कि ये मजाकिया नहीं है, उसे तुम पसंद नहीं हो, ठीक है। सो क्या सेंटेंस था हमारा? ही ओके, इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट फनी, ही डजंट लाइक यू, इट्स नॉट फनी, ही डजंट लाइक यू। ये मजाकिया नहीं है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, ठीक है। वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। एंड विद दिस वी आर डन विद आर दिस क्लिप। आई होप इसमें जितने भी डायलॉग्स थे वो आपको समझ आए होंगे। Although it was not having a lot of dialogues, but still the scene was interesting। इनको इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे वो एक दूसरे को जाने थे। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इसके अलावा भी आप कौन सी मूवी पे ट्रांसलेशंस चाहते हो, कौन सी मूवी की हेल्प से आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, कि लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ इसे लाइक कर देना। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।